Hello students. This is the kinetic gas equation which we derived from our previous video, right? So now we will study about kinetic energy. So if we are talking about kinetic energy of one molecule, so it will be equal to kinetic energy of one molecule, it will be equal to half mv square. So m is the mass of that molecule and u1 will be the speed. So if we are talking about kinetic energy of n number of molecules of gas, so it will be half m u1 square, half m u2 square, and up to half m u n square, right? Because we are talking about n number of molecules here. So see, there are m or half is common in all this, so we just take half or m common and we can write u1 square plus u2 square up to un square, right? Again we can do that, we can divide it or multiply it with n. So if we name this equation first, or if you know what is this value, we have did in our previous videos also. urms square is equal to u1 square plus u2 square to un square divided by n, right? So we can write this value. So kinetic energy of n molecules will be half m. By this we can write urms square into n, right? So we can write this value. So this is our equation number 2. So what we need to do, we just divide equation 2 by 1. Divide equation 2 by 1. So what we get, kinetic energy divided by PV, we are directly dividing it. So 1 by 2 m u rms square into n divided by 1 by 3 m n u rms square, राइट? जो वैल्यू कट रही है हम उनको कट कर देंगे. सो यू आर एम एस स्क्वायर और यू आर एम एस स्क्वायर एम एन की वैल्यूज जो कट रही हैं उनको हम कट कर देंगे. सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी गेट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 by 2 PV, राइट? सो स्टूडेंट्स वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT. ठीक है, अगर हम 1 मोल ऑफ गैस के लिए बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल ऑफ गैस, अगर इनकी वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो व्हाट वी कैन से PV इज इक्वल टू RT, राइट? वी कैन से PV इज इक्वल टू RT. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 by 2 PV और RT की वैल्यू इक्वल है, तो हम इसको PV की जगह यहाँ पे रख सकते हैं. तो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 by 2 RT. सो यही वैल्यू हम स्टार्टिंग में पिछली वीडियो में हमने बात की थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 by 2 RT. सो दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ गैस. ठीक है, फॉर 1 this is for 1 mole of gas. As you know, we are talking about the ideal gas, right? Because kinetic energy is depend upon temperature, not the nature of the gas, right? So here R is the gas constant. तो जो गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यू नो द वैल्यू इज 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन. ठीक है,
So this is the value of our gas constants. In previous videos we have also written 0.0821. तो जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू नहीं लेंगे. वी विल टेक दिस वैल्यू बिकॉज इट इज़ इन टर्म्स ऑफ जूल. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. सो जो T है दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर हियर. आई होप दिस इज क्लियर. अगर दिस इज काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, राइट. अगर हम काइनेटिक एनर्जी एन मोल्स ऑफ आइडियल गैस की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा n इंटू 3/2 RT. वी कैन से n इंटू 3/RT. और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें, सो वी नो दैट दैट इज इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर. सो 3/2 RT number of mole. So we will divide it by Na. So that is Avogadro number. ठीक है. So we can write 3/2 जो R डिवाइडेड बाय N है, R डिवाइडेड बाय Na है. So that is equal to K इंटू T. तो ये हमारी वैल्यू आ गई. और जो K है यहाँ पे दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ठीक है. और जो K की वैल्यू है दैट वी कैन राइट K इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन. So this is the value of Q. I hope this is understood by all the students. Now let us take an example. Find the kinetic energy of 8 gram of methane at 27 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, उसका मास दे रखा है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स 3/2 RT. ठीक है. अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे हम. क्या होता है मास, मीथेन है, मीथेन का मास क्या होता है 16. मोलर मास मीथेन का 16 होता है. मास हमें दिया हुआ है 8 ग्राम. सो इट विल बी 16 1/2, इट विल बी 0.5, राइट. So putting all the values here 0.5, 3/2. R की वैल्यू हमें पता ही है, अभी हमने पढ़ा था. R की वैल्यू 8.314, राइट. सो व्हाट विल बी द टेम्परेचर. टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ पता है. केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 हम उसमें ऐड कर देंगे. सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन. तो टेम्परेचर हमारा कितना आ गया 300. सो आफ्टर डिवाइडिंग और सॉल्विंग दिस we get the value of kinetic energy. So that will be equal to 1870 joule. So this is how you can calculate numericals.